Good morning students and welcome to the class. We are doing the revision of the second chapter in history, and the name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. And in this we have completed the discussion of the chapter. We have completely discussed the chapter, and today we will discuss some extra questions. The questions which are given at the end of the chapter. So the questions which are given at the end of the chapter, you have done all those questions, but you need to do some questions from between the chapter, because there are so many knowledge is there between the chapter, तो उसके अंदर से आपको questions बहुत ही important questions बनते हैं, तो वो आज हम लोग उसी को discuss करेंगे. तो in this regard we will see the first question. You can write the first question. How do we know about hunters and gatherers, about the lives? Okay? How do we know about the lives of hunters and gatherers? So what will be the answer? The answer will be that we know about the hunters and gatherers from the things they made and used, like tools. Tools of stone, wood and bone were made by these people, and they used these tools, and the remains of these tools gives us so much information about the lives of the hunters and gatherers. So we can write down we know about the lives of hunters and gatherers by the things they made and used, है ना, जिनको वो बनाते थे और यूज करते थे. ठीक है, and used tools were made and used by them tools were made and used by them, and remains of these stone tools are important okay. So
We know about the lives of hunters and gatherers by the things they made and used. Tools were made and used by them, and remains of these stone tools are important source of knowledge. Okay, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन 2 हमारा होगा, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं एक चैप्टर के अंदर से, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख के डिस्कस करें. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, है ना, कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बीच में से. तो इसके लिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू स्टडी द होल चैप्टर. पूरा चैप्टर आपको रीड करना होगा. उसमें जो भी आपको जैसे जो क्वेश्चंस निकल रहे हैं उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये एक क्वेश्चन बन सकता है. धीरे धीरे, अभी शायद नहीं इतना समझ में आए, बट धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा. जब आप अपने तरफ से एफर्ट करेंगे तभी समझ में आएगा. बिना एफर्ट के तो कुछ नहीं है, समझ में आने जा रहा है ना. तो जब एफर्ट करेंगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और तब आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, है ना, कि कहाँ हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, कहाँ से ये आ सकता है. ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा कि फॉर व्हाट पर्पस tools were used, for what purpose tools were used by hunters and gatherers. ठीक है, किस पर्पस से वो टूल्स को यूज करते थे. हमने ये डिस्कस किया था ना कि टूल्स को यूज करने के बहुत सारे पर्पस थे, जैसे टू कट मीट एंड बोन, देन टू स्क्रैप द bark from the tree, to hide, to scrape hide from the animal's skin, to chop fruit and roots, है ना. इन सब पर्पस से ही टूल्स यूज होते थे. इसके अलावा वुड को भी चॉप करने के लिए, जैसे फायर वुड उनको चाहिए होता था, उसके लिए भी उनको वुड को चॉपिंग करने की जरूरत होती थी, उसके लिए भी टूल्स यूज होते थे, है ना. तो इस तरह से यही इसके मेन यूज है. तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द पॉइंट्स. ओके, आपको पूरे सेंटेंसेस के साथ लिखना है आंसर. मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रही हूँ, बट यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर विथ स्टेटमेंट. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, और तब फिर पॉइंट्स होने चाहिए. ठीक है, तो हम लोग इसमें कई सारी चीज देख सकते हैं कि स्टोन्स वर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, ऐसे आप लिख सकते हो. और ठीक है, अब क्या पर्पस है. पहला हम लिख सकते हैं टू कट मीट एंड बोन, to scrape bark from trees and hides from animal skins. Then to chop roots
and vegetable, है ना, to chop roots and vegetable, then to chop wood also. Fourth point, to chop wood. So for these purposes the stone tools were used. Okay, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. So the next question is, where did the hunter and gatherers choose to live in? Where did the hunter and gatherers choose to live in? कहाँ पर वो रहने के लिए जगह चूज करते थे, सेलेक्ट करते थे? तो इसमें हमने इसको भी डिस्कस किया था कि ज़्यादातर ऐसी जगहों पे ये हंटर गैदरर्स रहना पसंद करते थे जो कि रिवर या लेक के पास हो, है ना, नियर द रिवर और लेक, या फिर एक दूसरा भी उनका क्राइटेरिया होता था चूज करने का, और वो ये था कि उनके लिए स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता था, है ना. दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्टोन, क्योंकि स्टोन से ही तो टूल्स बनाते थे, टूल्स से ही उनका एवरीथिंग वाज डन बाय टूल्स ओनली, हंटिंग गैदरिंग जो भी करते थे. तो वो ऐसी जगह खोजते थे जहां पर कि उनको अच्छी क्वालिटी का स्टोन ईजिली मिल जाए. ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया ही इसमें हम लोगों को बताना है. एक तो नियर द रिवर एंड लेक्स एंड द प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल. ठीक है, इसमें आपका आंसर कैसे स्टार्ट होगा कि द हंटर्स एंड गैदरर्स चूज टू लिव इन फॉलोइंग प्लेसेस. ठीक है, वो सेंटेंस मैं नहीं लिखूंगी, यू शुड राइट इट ऑन योर ओन कि द हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन द फॉलोइंग प्लेसेस. द फर्स्ट पॉइंट इज नियर द रिवर्स और लेक, ठीक है. और दूसरा हो गया द प्लेस वेयर गुड क्वालिटी stones were easily available. ठीक है, the place where good quality stones were easily available. ये दो क्राइटेरिया थे. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अबाउट साइट्स. व्हाट डू यू मीन बाय साइट्स? साइट्स क्या होते हैं? बिकॉज हमने देखा ना जो मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसमें बहुत सारे नियोलिथिक साइट्स हैं,
पैलियोलिथिक साइट्स हैं। तो साइट्स ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना जब हम साइट कहते हैं, तो बहुत सिंपल है साइट्स का मतलब। साइट्स जो है वो प्लेसेस होते हैं। वैसे प्लेसेस जब हम हिस्ट्री में साइट्स यूज करते हैं, हिस्ट्री में, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, हर सर्कमस्टांस, हर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली जो वर्ड्स होते हैं ना उसके मीनिंग थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम हिस्ट्री में साइट्स को यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब वो हो रहा है कि वो प्लेसेस जहाँ पे रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड, उसी को हम साइट्स कहते हैं, ठीक है। So our next question is, what do you mean by sites? ठीक है, साइट से आप क्या मीन करते हो? तो क्या कहेंगे कि साइट्स आर प्लेसेस sites are places where the remains of the things, where the remains of the things like tools, pots, buildings, etc. were found, है ना। तो साइट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइट्स? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड, ठीक है, इसी को हम साइट्स कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेम द प्लेस वेयर द ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड, और नेम द नियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट, हम लोग अभी पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं ना, तो नेम द पैलियोलिथिक साइट्स वेयर ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड। कौन सा प्लेस है जहाँ पे कि एश के ट्रेस, एश क्या हुआ, हमने कहा था ना फायर यूज होता था उस समय में, कैसे पता चला? क्योंकि फायर के जो एश होता है उसके ट्रेसेस मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कर्नूल केव्स में। आज कहाँ है कर्नूल केव्स? आंध्र प्रदेश, ठीक है। So our next question is, name the Paleolithic site where traces of ash
have been found, है ना। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है कर्नूल केव्स। Here also you should write the complete sentence. The Paleolithic site where traces of ash have been found is Kurnool Caves. Okay? इस तरह से आपका आंसर जो होता है वो कंप्लीट होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड in the climate of the world around 12,000 years ago। क्या मेजर चेंज हुआ था क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड में कि वार्मथ बढ़ने लगा था, टेम्परेचर बढ़ने लगा था, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट मेजर चेंजेस occurred, what major changes occurred in the climate of the world around 12,000 years ago, है ना। 12,000 years पहले क्या मेजर चेंजेस आए थे? So what was the change? The change was in the temperature of the climate, है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा कि the major changes occurred in the climate of the world around 12,000 years ago was increase in the temperature. Increase in the temperature of the environment। ठीक है, so answer is increase in the temperature of the एटमॉस्फेयर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how did the farming and herding एक्टिविटी स्टार्टेड, कैसे ये स्टार्ट हुआ? तो हमने इसको भी बहुत बढ़िया से बताया था मैंने, कैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। एनवायरनमेंट में जो चेंज आया वो क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ ग्रासलैंड इंक्रीज करते हैं। ग्रासलैंड के साथ साथ जो एनिमल्स कैटल थे, जो हर्बीवोरस एनिमल्स थे, उनका नंबर बढ़ता है। और इसी के साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स थे, जो हंटर गैदरर्स थे, उनको अब वो ऑब्जर्व करते हैं एनिमल्स को और धीरे धीरे वो हर्डर बन जाते हैं। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि कुछ इसका आंसर काफी लंबा होगा, ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं पॉइंट्स लिखूंगी इसके। दूसरी तरफ ये भी होता है कि कुछ
ग्रेन बियरिंग जो ग्रास होते हैं वो अपने आप नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। उनको ह्यूमंस दे नॉट ओनली स्टार्टेड टू ईट बट दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट। उसका राइप करने का सीजन क्या है, कैसे उसको ग्रो किया जाता है, सारे इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे वो हर्डर एंड फार्मर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल इरेज दिस क्वेश्चन, क्योंकि जितने इसके पॉइंट्स है वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, तो एक ही साथ लिखेंगे ताकि आपके लिए आराम हो। तो यू राइट डाउन दिस क्वेश्चन, है ना, कि हाउ डिड द फार्मिंग एंड हर्डिंग एक्टिविटी स्टार्टेड। ओके, around answer. I am starting with points. You must start with the sentence ki the farming and herding activity started in the following way. ठीक है, first is around 12,000 years ago. The climate of the world started to change. ठीक है, then the next point is with the increase in the temperature, the grasslands were developed. The number of grass grazing animals increased, and the number of grass grazing animals increased, and the human being observed their eating habits. The number of grass grazing animals increased, and the human beings observed their eating habits and breeding season, and slowly they become herder.
ओके, तो हर्डर तो वो बन गए, है ना। अब एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा उसमें ये हो जाएगा कि कैसे वो फार्मर बने। ठीक है, तो इसको इरेज करके मैं अभी फिफ्थ पॉइंट लिखूंगी। ओके, fourth point is with the increase in the temperature, some grain bearing grass grew naturally. And then the next point, in the next point you can write the human being observed and learned the art of farming and slowly they became farmer. तो इस तरह से जो हंटर गैदरर्स थे वो फार्मर्स एंड हर्डर्स बन जाते हैं। तो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ओके।